तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे, हम ये भी देखते हैं कि ये अच्छा तो करेंगे, लेकिन क्या उनका स्टॉक प्राइस अट्रैक्टिव है या पूरे फ्यूचर को डिस्काउंट करके बैठ गया आज। सो if stocks have run up far ahead, discounting the next 5-year growth in this sector, then again it's a bad investment. So we feel banking is a very interesting sector, financial services is a very interesting sector. जिनको अपने बेहतर फ्यूचर के लिए सही तरह से इन्वेस्ट करना है, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना है, उसके लिए 10 साल पहले या 20 साल पहले इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे। एक्सेस टू नॉलेज, एक्सेस टू एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं था। आज रियल टाइम सब कुछ अवेलेबल है। आप 2 बटन दबा के यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, किसी भी फंड हाउस की वेबसाइट पे आके उनके इन्वेस्टिंग फिलोसफी को समझ सकते हो। नो डाउट इसके साथ रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न इक्विटी का X% आएगा, शायद इसका X-1 या X-2 भी आ सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इक्विटी के X% रिटर्न के लिए साथ में Y% फ्लक्चुएशन आता है, अ मल्टी एसेट स्ट्रैटेजी गिव्स यू फ्लक्चुएशन विच इज Y डिवाइड बाय 2। मोर और लेस वो फ्लक्चुएशन को आधा कर देता है। इच्छा होती है स्ट्रेट लाइन रिटर्न की, बट वो रियल वर्ल्ड में स्ट्रेट लाइन रिटर्न कभी नहीं मिलता है। इन द रियल वर्ल्ड मार्केट्स फ्लक्चुएट इज अ यूनिवर्सल पावर लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग। तो फ्लक्चुएशन से अगर हमें बचना है तो उसके लिए सिर्फ स्वॉर्ड नहीं चाहिए, उसके लिए हमें शील्ड चाहिए, और वो शील्ड होता है गोल्ड का और बॉन्ड्स का। व्हेन वी लुक एट व्हाट आर कंज्यूमर्स सर्चिंग द मोस्ट फॉर on Google, they are searching for best performing mutual fund. Now that is the worst way of investing. The quest for best performing mutual fund is the worst way of being an investor. Let all investors get this with clarity. I assure you that you will end up owning a portfolio of the worst performing funds if you select based on past best performing funds. मेरा सबसे important learning ये है कि पैसा कमाने में 12 महीने लगते हैं। हर दिन 360 दिन हम जब ऑफिस में आके काम करते हैं, बीच के छुट्टी के 30 दिन निकाल दो, 330 दिन लगते हैं पैसा कमाने में, और उसको जब हम इन्वेस्ट करते हैं हम 2 मिनट भी नहीं सोचते कि क्या मेरा इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो सही है या नहीं है। हाय एवरीवन, मेरा नाम नम्रता अरोरा है एंड वेलकम बैक टू म्यूचुअल फंड्स की बात। म्यूचुअल फंड्स की बात में हम ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस, कमोडिटीज, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब के बारे में बात करते हैं। एंड इन एवरी एपिसोड वी ट्राई टू गेट समवन विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी है। वी हैव विद अस मिस्टर कल्पेन पारिक, who is the Managing Director and Chief Executive Officer of DSP Investment Managers Private Limited and a member of the Executive Committee. Mr. Kalpen Parekh has over 19 years of experience in sales across client segments, distribution and marketing. He was previously the Managing Director and Head of Sales and Marketing at IDFC Mutual Fund. He has also worked with the Birla Sun Life Asset Management Company and ICICI Prudential Asset Management Company after starting his career with L&T Finance. Mr. Kalpen Parekh holds a master's degree in management studies in finance from the Narsi Monji Institute of Management Studies, as well as a bachelor's degree in chemical engineering from Bharati Vidyapeeth, Pune. Hello everyone and welcome back to Mutual Funds की बात. Thank you so much for joining us today. And जैसे हमने आपको promise किया है कि हर episode में we try to get someone with a lot of experience, lot of knowledge in the mutual fund space. And today we have someone who's extremely well read, who's extremely famous. I'm sure आप सब ने इनके videos, interviews देखे होंगे. We have Mr. Kalpen Parekh with us, who is the MD and CEO of DSP Mutual Fund. Hi Kalpen, and welcome back to the show. Thank you so much for your time and thank you so much for joining us today. Thank you, Namrata, and thanks for calling me again. Sure, thank you so much. And we have a lot of interesting questions lined up for you. ये questions हमने हमारे users से ही लिए हैं. So I'm sure our users are waiting to listen to all your answers. So let's start with the very first question, and I think it's a very important question for us to understand because India में ना जो India consumer market है, it is going to be the world's third largest by 2027. Of course, क्योंकि middle income बढ़ रही है, we have people who are earning more money now. So आपको क्या लगता है कि in a scenario like this, कौन से sectors हैं जो सबसे ज़्यादा benefit करेंगे in years to come? So as an investor, which are the sectors which I can expect कि वो अच्छा करने वाले हैं? So actually the best way to learn this, और अगर आपको ये समझना है तो आप हमारे कोई भी इक्विटी स्कीम की फैक्ट शीट अगर आप खोल के देखोगे तो आपको सीधे इसका जवाब मिल जाएगा। बिकॉज हमें जो लगता है अगले 3 से 5 साल में जो सेक्टर्स अच्छा करेंगे और विद इन दो सेक्टर्स कौन सी कंपनीज अच्छा करेगी या कौन सी कंपनीज सही है हमारे मेहनत का पैसा लगाने के लिए, वो हमारे पोर्टफोलियो में दिख जाता है। हमारे पोर्टफोलियो में आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा वेट हमने जो दिया है वो बैंकिंग को है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज।
बिकॉज कंजम्पशन कब बढ़ेगा, जब परचेजिंग पावर बढ़ेगा. And as purchasing power rises, consumers will also invest more, spend more. They will need more banking. Credit की ज़रूरत होगी. So banks who are in the business of offering banking products, credit, loans, housing loans, auto loans, credit cards, investment products, insurance products, wealth management. That is going to be a very large part of the ecosystem which will continue to grow. और इसको एक सपोर्ट मिल रहा है बाय लॉट ऑफ अदर गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द लास्ट 5 years. मेनली जो टैक्स रेगुलराइजेशन हुआ है जीएसटी के बाद और डीमोनेटाइजेशन हुआ है, इन दोनों चीज़ों की वजह से लॉट ऑफ मनी नाउ इज कमिंग इनटू द बैंक अकाउंट्स एंड नॉट रिमेनिंग इन कैश. So when sectors go through formalization like this, it creates huge advantages for the financial services system. और उसके अंदर जो अच्छी बैंक्स है या अच्छी बिजनेसेस, अच्छे कंपनीज है जो ओवर प्राइस नहीं है. आज की तारीख में पूरा मार्केट एक वैल्यूएशन में थोड़ा महंगा हो गया है. तो हम सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे, हम ये भी देखते हैं कि ये अच्छा तो करेंगे लेकिन क्या उनका स्टॉक प्राइस अट्रैक्टिव है या पूरे फ्यूचर को डिस्काउंट करके बैठ गया आज ही. सो if stocks have run up far ahead, discounting the next 5-year growth in this sector, then again it's a bad investment. So we feel banking is a very interesting sector, financial services is a very interesting sector. इसके अलावा हमें लगता है कि कंजम्पशन के अंदर ही ऑटोमोबाइल्स है. अगेन ऑटो सेक्टर इन इंडिया 10 साल के स्लो डाउन के बाद धीरे धीरे बाहर निकल रहा है. सो दैट इज अगेन अ गुड स्पेस. उसके बाद यू लुक एट होम बिल्डिंग, कंपनीज विच आर बेनिफिटिंग फ्रॉम ग्रोथ इन रियल एस्टेट. पेंट कंपनीज है, केबल कंपनीज है, इलेक्ट्रिक कंपनीज है, durable companies. So a lot of these will have significant growth over time. Just that their stock prices also have run up. Because if you know about this, I know about this, the stock market also knows about it. So we just have to keep that in mind. Sure. Okay. So you do think कि banking and financial services सबसे ज़्यादा benefit करने वाला है in times? Yes. All right. Okay. So I think एक हम बहुत ही interesting trend देख रहे हैं आजकल, especially amongst the new age investors. वो ये है कि बहुत सारे investors जो हैं आजकल obviously financial assets को favor कर रहे हैं and more so mutual fund assets compared to any other financial assets. एक recent report by CAMS shows कि जो 54% of first time mutual fund investors हैं who've been investing for over 5 years, they are all millennials. और उनमें से 2/3 जो SIP रूट से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1/3 थ्रू द लमसम और वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स. तो आपके व्यू में इतने सारे जो मिलेनियल्स हैं वो म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? दैट्स वन. एंड सेकेंड, वाई SIP के रूट से? वाई डू यू थिंक मिलेनियल्स आर गोइंग फॉर SIPs? मिलेनियल्स मतलब 2000 के बाद, राइट? सो मेरा ये मानना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो 25 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ. 98 से आई बीन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स. और जब से मैंने ये कैटेगरी के बेनिफिट्स समझे हैं, ये शायद दुनिया का, और ये मैं स्पेसिफिकली इंडियन म्यूचुअल फंड सेगमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ये दुनिया का सबसे ट्रांसपेरेंट व्हीकल है, सबसे डेमोक्रेटाइज व्हीकल है, जिसमें हमारे कंपनी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो भी पैसा लगाता है और शायद उनका ड्राइवर भी लगाता होगा. मेरे घर के जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी इन्वेस्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ, मेरे पिताजी भी करते हैं, मेरा बेटा भी करता है. सो इट इज़ बिकॉज म्यूचुअल फंड जेन्युइनली सही है. ये अलग बात है कि पिछले 5-6 साल में हमने म्यूचुअल फंड सही है का कैंपेन किया था एमफी की तरफ से और काफ़ी लोगों ने उससे कैटेगरी को नोटिस किया. लेकिन पिछले 3 साल में ये भी हुआ है कि जैसे आप जैसे प्लेटफॉर्म्स ने आके इतना अवेयरनेस क्रिएट किया है, नॉलेज बिल्ड किया है, आप इस तरह के सेशंस जब करते हो तो कंज्यूमर्स जिनके पास हर महीना इनकम आती है और जिनको अपने बेहतर फ्यूचर के लिए सही तरह से इन्वेस्ट करना है, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना है, उसके लिए 10 साल पहले या 20 साल पहले इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे. एक्सेस टू नॉलेज, एक्सेस टू एक्सपर्ट्स अवेलेबल नहीं था. आज रियल टाइम सब कुछ अवेलेबल है. आप 2 बटन दबा के यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो, आप किसी भी फंड हाउस की वेबसाइट पे आके उनके इन्वेस्टिंग फिलॉसफी को समझ सकते हो और उसके बाद ट्रांजैक्ट करने का एक्सेस, जो 5 बटन दबा के यू कैन एक्चुअली स्टार्ट योर फोलियो. सो आई थिंक दिस इनेबलिंग इकोसिस्टम जो पिछले 10 साल में बना है उसका नतीजा है कि बहुत सारे यंगस्टर्स म्यूचुअल फंड को अपना सेविंग का पहला तरीका अपना के शुरू कर रहे हैं.
दूसरी बात यह है कि वाई सो मेनी एस आई पीज। अब एस आई पी इसलिए भी है बिकॉज मोस्ट ऑफ अस इन इंडिया आर सैलरीड एम्प्लॉयज, तो हमारा सोर्स ऑफ कैश फ्लो जो है वो मंथली है। तो अगर Yeah. सोर्स ऑफ कैश फ्लो मंथली है तो ऑब्वियसली फॉर्मेट ऑफ इन्वेस्टिंग भी मंथली होगा, एंड बाई Yeah. डिफॉल्ट इट बिकम्स एस आई पी। बट लेट मी ऐड वन मोर पॉइंट, द ब्यूटी ऑफ एस आई पी इज समथिंग वेरी डिफरेंट। इट्स नॉट अबाउट द फैक्ट कि आप हर महीना पैसा सेव करके इन्वेस्ट कर रहे हो, बट नॉर्मली 10 साल 20 साल की जर्नी में 50 से 60% टाइम ऐसा होता है जब मार्केट का जो डायरेक्शन है वो खराब होता है, नेगेटिव होता है या साइडवेज होता है। सो Yeah. मोस्ट इन्वेस्टर्स डोंट लाइक साइडवेज मार्केट। यू नो, आई एम श्योर आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर्स लाइक टू इन्वेस्ट अ लॉट मोर व्हेन लास्ट 1 year 2 year 3 year रिटर्न्स आर गुड, एंड एक्चुअली दैट्स अ फंडामेंटली रॉन्ग वे ऑफ इन्वेस्टिंग. While I spoke about easy access, convenience, and everything, but the pitfall of that is people come on a website, look for last 1 year return, see which is the best performing fund, and then they invest there. That is the most dangerous way of investing. So if you just avoid that and do an SIP, आपका पैसा मार्केट के अलग अलग फेज में इन्वेस्ट होगा। तो जब जब मार्केट में मंदी होती है और हमें पर्सनली इन्वेस्ट करने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन SIP हमें बताए बिना हमारे बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट कर लेगा और यूनिट्स क्रेडिट कर लेगा। तो SIP एक ऐसा फीचर है जिसने इंडियन इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छे सेवर्स बनाया है, इंडियन सेवर्स को बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स बनाया है, और मंदी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट होते हैं। तो पिछले 4 साल में वी हैड 9 months ऑफ कोविड लेड NAV falls. We had another 9 months of Ukraine-Russia-led NAV falls. Oil prices had risen. So there were so many periods of negative NAVs. And Yeah. only thanks to SIP, we kept on accumulating more units. और आप ज़्यादा units कब acquire करोगे? Only when NAVs fall. So SIP does this beautiful task of helping us buy more units and taking advantage of NAV falls. And I think someone who will remain a 10 year, 20 year SIP investor, maybe I can't write it on a piece of paper, but I can broadly, convey to you that you will be in the top 5% list of investors in the country if you remain invested for the next 10, 15, 20 years and continue your SIPs. But do you think is it just really the ecosystem? Because ठीक है मेरे लिए invest करना convenient हो गया है, but then eventually the product has to perform for me to be to continue to stay invested. So do you think from that perspective also देखा जाए तो mutual funds में लोग इसलिए invest कर रहे हैं? Of course ecosystem is definitely there, मेरी life easy बना रहा है, लेकिन क्योंकि product भी मुझे वो confidence देता है as an investor कि नहीं तुमने सही जगह पे अपना पैसा लगाया है. बिल्कुल। तो नम्रता, पॉइंट वैलिड की एंड ऑफ द डे हमें क्या हुआ है, पिछले 3 साल में नए इन्वेस्टर्स आ गए और इमीडिएट वैलिडेशन हो गया दैट वी हाँ. इन्वेस्टेड एंड वी मेड रिटर्न्स। नाउ दैट इज द साइन ऑफ वरी फॉर मी बिकॉज देर मैंने अपने 25 साल में ऐसे 7 या 8 साल ऐसे भी निकले हैं जब जीरो रिटर्न था। इनफैक्ट फिलहाल हमारा एक एड कैंपेन चल रहा है, एजुकेशन कैंपेन, आई वोंट यूज द वर्ड एड कैंपेन, वेयर वी आर सेइंग दैट आप क्या करोगे अगर आपके मेन एसेट क्लास ने 3 4 5 साल तक जीरो रिटर्न दिया? क्या आप उस एसेट क्लास को अपनी लॉयल्टी दे सकोगे? 99% इन्वेस्टर्स मे से नो, and then returns will not come to you then. So for returns to come to you, you have to be loyal to your asset class in its bad times. अभी तो क्या, अच्छे टाइम में we are fair weather friends. अच्छे टाइम में we are all happy, SIP grow हो रहा है, mutual funds are growing and all of that. But the real test of an investor will be when he goes through 3 4 years of poor returns, negative returns. And I think the real test of the market, of the investor, of the industry, of platforms like all of you and me will be जब 93 से 2003 ऐसा फेज था जब इंडियन मार्केट्स का रिटर्न जीरो था। 2008 से 2013 was a phase where equity funds and equity market gave zero returns. But in those periods, other asset classes made 10, 15, 20%. So I think अगर हमारे इन्वेस्टर इस कॉन्सेप्ट को पहले से समझ ले दैट लंबे सफर में बीच बीच में ऐसे फेजेस भी आएंगे कि आपको धूप ज़्यादा लगेगी एंड यूल फील नहीं लेट मी गेट आउट, बहुत ज़्यादा बारिश होगी यूल से लेट मी गेट आउट, बट इफ यू गेट आउट at least ensure you don't get out in bad times. Get out in when markets are rising, it's fine. But if you get out in wrong times, you will not be able to grow your wealth. Sure. I completely agree with you on that. And I think even my next question, pretty much to that extent, adds on to what we were discussing. क्योंकि every time markets ऊपर जाती हैं, of course excitement तो ज़रूर होता है, लेकिन at the same time एक fear भी रहता है कि अब market correction होगा, तो मेरा पैसा नीचे जाएगा. In the recent past, we've seen the trend कि जो काफ़ी brokers होते हैं, they're very cautious about mid cap and small caps in general.
कुछ सेक्टर अगर हम देखें तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स ने काफ़ी अच्छा रैली भी किया है इन द रीसेंट पास्ट। तो आप ये बताइए एज एन इन्वेस्टर मैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कैसे इफेक्टिवली डाइवर्सिफाई कर सकती हूँ एंड रिक्वेस्ट यू टू टेल अस फ्रॉम एन अग्रेसिव एंड अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सो सी बहुत ही लंबा सवाल है और 5 मिनट में आई डोंट नो हाउ मच आई विल बी एबल टू आंसर बिकॉज एवरी कस्टमर्स नीड्स आर डिफरेंट बट आई टेल यू आई एम अ मॉडरेट इन्वेस्टर और यू कैन कॉल मी अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर आई एम नॉट वेरी अग्रेसिव मुझे जब बहुत ज़्यादा रिटर्न बन जाते हैं तो मैं कंजर्वेटिव हो जाता हूँ और जब मेरे पोर्टफोलियो का करंट रिटर्न कम हो जाता है तब मैं अग्रेसिव बन जाता हूँ सो आइडियली what we have to learn as investors is not to label ourselves in aggressive or conservative bucket, but to try to make ourselves sensible investors. And what is a sensible way of investing? A sensible way of investing is to increase risk of your portfolio when prices are falling, and to reduce risk in your portfolio when prices are rising. इसको बोलते हैं counter cyclical investor. So you should not get excited when everyone is making a lot of money, because by that time lot of returns are already in, and future returns may be less. बेन ग्राहम ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली है जो वॉरेन बफेट के भी गुरु थे. उन्होंने बोला कि जब व्हेन योर करंट रिटर्न्स आर राइजिंग, most people assume कि market is safe, but actually market is becoming risky. And when current returns are falling, which means your last 1 year return, 2 year returns are even negative, most investors will think ये तो risky है market, but actually तब risk कम होते जा रहा है, market safe बनते जा रहा है because lot of froth is out. So you have to be a counter cyclical investor ideally. So today, markets have run up last 4 years. इतना सारा पैसा आया है, lot of stocks have run up. Small and mid caps are, according to our view, they have given 1 or 2 years of extra return, in the last 1 year itself. So there will be phases when either they will come down or they will, remain sideways for a reasonably long period of time. But which route it will take, I don't know. So my approach of investing would be that I will always keep around, between 20 to 40% of my portfolio. मैं कोशिश करूँगा इसको मैं जो rising tide है उससे थोड़ा हट के रखूँ. तो आज अगर स्मॉल और मिड कैप्स बहुत ऊपर जा रहे हैं या इक्विटी एसेट क्लास ऊपर जा रहा है, आई विल हैव 1/3 ऑफ माय पोर्टफोलियो in non-equity as an asset class. So my portfolio actually today has combination of short-term debt funds and gold in the portfolio. In fact, as I speak, like I said, I'm a more conservative investor. मेरे पूरे 100 रुपये में सिर्फ 50 रुपये इंडिया के इक्विटी म्यूचुअल फंड में है, 20 रुपया ग्लोबल स्टॉक्स के म्यूचुअल फंड में है और बाकी का 25-30 रुपया गोल्ड और बॉन्ड्स में. सो इट इज़ अ वेरी रीजनेबली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की जो एक ही एसेट क्लास के भरोसे पे नहीं चल रहा है. नाउ लॉन्ग टर्म में सबसे बेस्ट एसेट क्लास इक्विटी होता है बिकॉज ये इन्फ्लेशन को बीट करता है, परचेसिंग पावर देता है, वेल्थ क्रिएशन कराता है. लेकिन मीडियम टर्म में इसके फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और अगर मुझे ज़्यादा फ्लक्चुएशंस बेयर नहीं करने हैं तो मेरे पोर्टफोलियो में हमेशा 25 से 30 रुपया नॉन इक्विटी होना चाहिए. इफ आई एम अ वेरी अग्रेसिव इन्वेस्टर जो ये सोचता है कि मैं 10-20 साल के लिए पैसा लगाने को तैयार हूँ, बीच बीच के ये फ्लक्चुएशन से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. I am constantly earning new income every year. So every time markets fall, I am getting new money through my savings or through my annual bonus, and I'll keep on investing. Now, such investors can continue with their long-term SIPs in equity as an asset class or in equity and bond fund, which will have again 20-25% in bonds as a small measure of conservatism. So these are two approaches. The conservative investor should do more tighter asset allocation. You invest more in an asset class जो फिलहाल रिटर्न नहीं दे रहा है and trim that asset class which is giving too much of returns. So if today small caps mid caps are very expensive और आपको अगर this is a time to rebalance your portfolio, आपके पोर्टफोलियो में अगर सिर्फ 30 रुपया स्मॉल और मिड कैप में होना चाहिए but that has gone to 40, trim that extra 10. If you need to spend something, go ahead and spend, go and buy something that you want to buy. Use the current phase of profits that you are in to fulfill some of your goals. And de-risk your portfolio partly by moving 1 or 2 notches below in terms of your risk calibration. Okay, so just an add-on to this, Kalpen, अगर मुझे equity में diversify करना है, so suppose मैं 50 या 60% portfolio equity funds में है, तो उसमें मैं कैसे diversify करूँ? See, the best way to invest in equity funds is to invest in a flexi cap fund. यहाँ पे ना मैं हमेशा मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को भी बोलता हूँ कि see, आपके पास अगर वो समझ नहीं है कि स्मॉल कैप में कब डालना चाहिए, मिड कैप में कब डालना चाहिए, तो पहले तो आपको डायरेक्ट इन्वेस्टर नहीं बनना चाहिए. बिकॉज अगर आपको यही सब सवाल पूछते रहना पड़ेगा हमेशा हर 3 महीने 6 महीने में, देन यू आर डूइंग इनजस्टिस टू योर हार्ड एंड मनी. So either you then delegate your money and decision making to someone who can guide you, who's a good advisor for you, or invest in a diversified flexi cap fund.
जहाँ पे फंड मैनेजर अपने जजमेंट के हिसाब से अच्छी कंपनीज का कॉम्बिनेशन बना देगा। सो दूसरा मेरा पॉइंट यह है कि हमने एक स्टडी किया है कि जो इंडिया के लॉस मेकिंग कंपनीज जो है, लॉट ऑफ देम आर स्मॉल कैप कंपनीज। इन कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी भी नेगेटिव होता है या लॉस मेकिंग होते हैं या आरओईज आर वेरी लो। Retail investors do a lot of purchases of stocks in such poor quality businesses just because the stock price is going up. Now instead of doing that, at least start with a small cap fund through an SIP. So in markets like today, I would say my preference would be to invest in a flexi cap fund, uh, which is not fixated on a market cap, but uska combination of good companies at right prices. एंड आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे। और जब अगर स्मॉल कैप सस्ते हो जाएंगे, अपने आप अपना वो वेट वहाँ पे बढ़ा लेगा। स्मॉल कैप जैसे अभी बहुत ऊपर जा रहे हैं, देन द फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर विल फाइन ट्यून द एक्सपोजर एंड डू इट ऑन योर बिहाफ। आई डोंट थिंक and I'm being very honest in your own interest as an investor, if you have to keep waiting for people like me to give you advice, something is wrong, because today I may give you one advice, tomorrow I'll give you B advice, and there are 100 experts giving you 100 different advices. So simply put, the simplest way of long-term investing is SIPs in a small cap fund instead of doing stocks directly, unless you are an expert, unless आप मेहनत करते हो कंपनीज के बैलेंस शीट्स और एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के जजमेंट देने की। अगर वो नहीं कर सकते हो तो स्मॉल कैप फंड में SIP कीजिए, लमसम मत डालिए। दिस इज नॉट द टाइम टू डू लमसम। लमसम में कब डालना चाहिए स्मॉल कैप में? जब कोविड टाइप का क्राइसिस हो, एनएवीज आर डाउन 25-30%, वो बहुत अच्छा टाइम होता है स्मॉल कैप में रिस्क बढ़ाने का। एंड स्टैंड अलोन अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो फ्लेक्सी कैप फंड एंड any hybrid fund which is combination of equity and other asset classes, more so today, because overall the risk of the market has gone up. It's gone. Okay, fair enough. All right. So I think आपने मैं आपसे बहुत सारे जो सवाल पूछने वाली हूँ, you've touched up on them slightly in your answer here. तो सबसे पहले ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती हूँ, which is about multi asset allocation funds, क्योंकि you said diversification is extremely important and completely with you on that. Not just within equity, but like you said, within different asset classes. So obviously जो multi asset allocation funds होते हैं, they give us that kind of exposure which which we want. And off late multi asset allocation funds काफी famous हो गए हैं. People are looking at investing in this category. DSP Mutual Fund has launched the DSP multi asset allocation fund. तो आपके opinion में जो mutual fund investors होते हैं, should they have multi asset allocation funds? And also tell us a little bit about the timelines, कि as an investor मुझे कितने साल के लिए multi asset allocation fund को अपने portfolio में रखना चाहिए, and has this model worked in the past? Few days back, so my dad keeps listening to my conversations जब मैं घर पे होता हूँ, तो उनको पता चला कि मेरा मल्टी एसेट फंड लॉन्च हो रहा है, तो ही टोल्ड मी कि मुझे भी तुम्हारे फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है। मैं ऑब्वियसली उनके पूरे इन्वेस्टमेंट्स को मैं ही देखता हूँ, तो आई सेड आपका किधर है? वो तो मेरा ही पैसा है, मुझे ही निकाल के शिफ्ट करना होगा। तो आई आस्क्ड हिम क्यों आपको करना है, एंड ही सेड कि ये नया फंड लॉन्च हो रहा है इसलिए करना है। नाउ दैट इज अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। जस्ट बिकॉज इट इज न्यू इज नॉट अ novelty is not an investment strategy. The strategy has to somewhere fit your profile and your time horizons. Yet it is a great fund for him or even for me, because like I said, we are slightly conservative investors. हमें लगता है कि जब एक asset class एक threshold valuation के ऊपर चले जाता है, जो पिछले 5 से 7 सालों में whether इंडिया के equity stocks हो और US के leadership companies जो है, all of them have got a 10-year tailwind of high returns, because world over interest rates had crashed to almost zero. पिछले 1-1.5 साल से that equation has gradually started to turn. Interest rates have started to rise again sharply, and yet stock markets have not as much reacted. So I do feel that markets are slightly more expensive than what they deserve to be. And as a conservative investor, if markets go through 3, 4, 5 years of a phase of consolidation, तो ऐसे phase में शायद gold है या bonds है, these components can actually give defense to the portfolio. So any investor who's a conservative investor who cannot जिसे मार्केट के फ्लक्चुएशन से डर लगता है, या अगर आपकी NAV 10-15% नीचे चली गई and you don't feel great about it, or you feel like getting out of the market, now for such investors multi-asset is a very सुपीरियर प्रोडक्ट। दूसरा, इस साल बजट के बाद क्या हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स में टैक्सेशन के चेंजेस हुए हैं। नाउ अगेन लाइक आई सेड, फॉर अ कंजर्वेटिव और अ मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर लाइक मी who wants to do asset allocation
टूवर्ड्स इधर ग्लोबल स्टॉक्स, बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो में इंडियन इक्विटीज बहुत ज़्यादा है, तो मुझे ग्लोबल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, मुझे थोड़ा बहुत गोल्ड ऐड करना है, बिकॉज मैंने देखा है कि जब जब 5-10 साल अगर स्टॉक मार्केट्स साइडवेज होते या रिटर्न्स कम होता है, तब तब गोल्ड का रिटर्न अच्छा होता है। दुनिया भर में इतना सारा डेट प्रिंट हुआ है, करेंसी रिलेटेड वॉर्स की बातें हो रही है, अगले 15-20 सालों में काफ़ी ट्रेड रिलेटेड वॉर्स हो सकते हैं, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो सकते हैं। गोल्ड एक ऐसा एसेट क्लास है जिसका सप्लाई जो है ऑलमोस्ट जीरो होता है, मतलब जितना गोल्ड 10 साल पहले था दुनिया में, आज भी मोरलेस उतना ही है, इट हैज नॉट गॉन अप, सो इट इज हेंस अ प्रेशियस मेटल। सो एंड पिछले 10 साल का गोल्ड का रिटर्न सिर्फ 5-5.5% है, सो यू नो, एंड बट इन द लॉन्ग टर्म गोल्ड का एवरेज रिटर्न 11% है। तो उसका जो पोटेंशियल लॉन्ग टर्म रिटर्न है उससे करंट रिटर्न कम है। दीज आर टाइम्स टू एक्चुअली ऐड टू द एसेट क्लास, जब उसका करंट रिटर्न इज लेस देन द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। ऑन द अदर हैंड इक्विटी का लॉन्ग टर्म रिटर्न 12% है, एंड उसका करंट रिटर्न भी 16 से 18% है पिछले 10 साल का। तो मुझे आज अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, बॉन्ड्स में करना है, ग्लोबल स्टॉक्स में करना है, इफ आई डू इट वाया सेपरेट फंड्स, आई हैव टू पे अ हायर टैक्स rate which is equal to my marginal tax rate. Yeah. But if I blend these together in a single fund, all these 4 asset classes, one, they help me achieve 2 objectives. ये मेरे पोर्टफोलियो के फ्लक्चुएशंस को थोड़ा कम कर देती है, नो डाउट। इसके साथ रिटर्न भी थोड़ा कम हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न इक्विटी का X% आएगा, शायद इसका X-1 या X-2 भी आ सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इक्विटी के X% रिटर्न के लिए साथ में Y% फ्लक्चुएशन आता है, a multi-asset strategy gives you fluctuation which is y divided by 2, more or less वो फ्लक्चुएशन को आधा कर देता है। नाउ ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट महत्व कब होता है? सी तेजी में किसी को फ्लक्चुएशन से फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू आर सीइंग ओनली द पॉजिटिव साइड ऑफ वॉलेटिलिटी। लेकिन जब जब एनएवीज गिरती है, स्टॉक्स गिरते हैं, आज जैसे आज ही कुछ स्टॉक 7 से 10% डाउन है, तो जिसने कल स्टॉक खरीदे होंगे, ही विल फील दैट पेन। So when things go bad, concepts like multi-asset really reduce your volatility. And now the next statement I'm going to say, all of you who are listening to me, remember this carefully what I'm saying, that in a multi-asset fund, the gold and bond component of the portfolio actually enables me to hold my equity component of the portfolio for really long period of time, because because of this gold and debt component, which will reduce the fluctuation, I don't get out of equity at the wrong time. And because I don't get out, I remain invested for long. Because I remain invested for long, I compound. And because I compound, my wealth creation will happen. So the beauty of a conservative component in a multi-asset portfolio is it curbs your volatility and it allows you to stay for longer. Now, there is a price to pay. The price to pay is slightly lower returns. But it's not significantly lower. And I'll give you another data point. 97 से 2023, 26 years of data, Nifty has gone up by around 12% CAGR, median return of Nifty. Yes. Gold has gone up by 11% CAGR. And if you had a portfolio just mixing these two in a ratio of 50-50, mathematically the average return should be 11 plus 12 divided by 2, 11.5. Yeah. Actually, the real return for a 50-50 portfolio like this is 12.5. It is higher than the individual component because both asset classes दोनों अपने से opposite तरीके से behave करते हैं। तो अगर आप सही पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हो, when equities went up, you booked some profits, moved to gold. Then when gold went up, you booked some profits, moved back to equity. If you're able to do this once in every 3-4 years effectively, it brings the fluctuations down significantly and still allows you to earn the long-term returns. So I feel these are good times when equity as an asset class has run up a lot, gold has gone nowhere, interest rates have just started to rise. Having some part of defense in the portfolio is valuable. Now, such a strategy is not suitable for someone who does not, get influenced by fluctuations or volatility. अगर मुझे बाजार के उतार चढ़ाव से फर्क नहीं पड़ता, if I'm already a very evolved investor who can embrace volatility, then multi-asset is not for you. Okay. So, आपने बोला कि so we all understand कि gold एक long term asset class है, equity भी एक long term asset class है. So can we confidently say कि अगर आपको multi asset allocation fund में invest करना है, it should be a long term investment? Absolutely, yeah. So I'll answer the second part. Let's see, any portfolio which has any equity component in it should have minimum 5 to 7 years time horizon. और ये हम जब बोलते हैं ना 11% रिटर्न, 12% रिटर्न, अब एक साल में 11% मतलब 100 की वैल्यू 111 हो गई। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, एंड ऑफ कोर्स डोंट एक्सट्रापोलेट दीस रिटर्न्स बिकॉज ये रिटर्न शायद फिर से नहीं आएंगे। ये रिटर्न्स उनको मिले हैं जिन्होंने हमारे फ्लेक्सी कैप फंड में 1990
7 में पैसा लगाया था जब ये फंड शुरू हुआ था, 10 रुपए की एनएवी थी। ये फंड 26 साल में 90 गुना ऊपर गया है। इसका CAGR रिटर्न जो है वो सिर्फ 19% है, विच मीन 100 की वैल्यू 119 रुपया हो गया पहले साल में। एडिंग 19 रुपीज टू योर वेल्थ इज नॉट दैट ग्रेट। देन दूसरे साल में और 19 रुपीज ग्रो हुआ, फिर और 19 रुपीज ग्रो हुआ। बट ये कंपाउंडिंग पे कंपाउंडिंग जब होता है 25 साल में, this 19% is actually 90 times. Now that is the power. Now, which means the return you are making is not the 19%. The return you are making is the 26 years that you stayed put to make this money swell and make every 19 rupees compound again at 19 rupees. So the compounding comes only with time. तो 5 साल 7 साल में कंपाउंडिंग तो होता ही नहीं है, वो एक टाइम पास का फेज हो गया। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वी हैव नीड्स, वी हैव गोल्स एवरी 3 or 5 or 10 years, but some part of your component portfolio should be there at least for the next 10, 20, 30 years. And I'm talking with my own experience. My first investment happened in a mutual fund product in 98. So today my length of investing is around 25 years. In this fund that I was talking of, the DSP FlexiCap fund, by the way, 26 साल की हिस्ट्री में there are still only 23 investors who have stayed invested for this long. Wow, okay. That's something. So आपने बोला था कि आपके पर्सनली आप पोर्टफोलियो में ग्लोबल एक्विटीज में भी काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं। आइडियली जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होता है, सो टेल मी फ्रॉम द DSP मल्टी एसेट एलोकेशन फंड पॉइंट ऑफ व्यू कि आपका ग्लोबल एक्विटीज में भी एक्सपोजर है। बिल्कुल। इन जनरल क्या मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में ग्लोबल एक्विटीज होते हैं? सी, अलग अलग फंड हाउसेस की स्ट्रैटेजी और डिज़ाइन अलग होती है, बट जनरली मल्टी एसेट का मतलब यह है कि मल्टी एसेट होने चाहिए। अगर एक या दो ही एसेट होंगे तो मल्टी एसेट नहीं होगा। और हमारी सोच ये है कि अगर हमने सिर्फ इंडिया के इक्विटी और डेट का पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को दिया तो उसके लिए तो हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस फंड की कैटेगरी है, इक्विटी एंड बॉन्ड फंड की कैटेगरी है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन है। So you're already getting Indian asset classes. The reason why I spoke of global, so basically gold and global stocks both, आप दोनों एसेट क्लास आपको इन अ वे करेंसी के सामने हेज कराते हैं। जब करेंसी में फ्लक्चुएशन आता है, गोल्ड ऊपर जाता है। एक्चुअली लॉन्ग टर्म में जो 11% रिटर्न गोल्ड का दिखता है उसमें 3 से 4% करेंसी की वजह से आ गया है। अदरवाइज गोल्ड का रिटर्न सिर्फ 5 या 6% है, but because currency keeps depreciating, you get advantage. In our fund, we can go up to 40% in global stocks. We'll take a call at every point in time, once every 3 months, 6 months, when we do our portfolio comparison, that क्या हमें इंडिया के अच्छी कंपनीज सस्ते भाव पे ज़्यादा मिल रही है तो इंडियन स्टॉक्स में 40 to 50% एक्सपोजर होगा। क्या हमें इंडिया के बजाय ग्लोबल स्टॉक्स में ज़्यादा वैल्यू मिल रही है तो 20 के बजाय 40% हम ग्लोबल स्टॉक्स में डालेंगे। बट इसका डिजाइन विल बी मिनिमम 35 रुपीज विल बी इंडियन स्टॉक्स, मिनिमम 20 रुपीज एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम विल बी ग्लोबल स्टॉक्स, सो दैट इज अराउंड 55 and when markets are cheap, this 55 can even go to 80 rupees in equity between Indian and global. When stocks are rising, the component of defense, which is gold and bonds, will be between 30 to 40%. When stocks have crashed, we will take some money out of gold and bonds, reduce that exposure, reduce it as low as 10 each, which means total 20, and 80% will go to global stocks and Indian stocks. How are other multi-asset funds in the industry? In our case, we have said that we'll have minimum 35% in Indian equities, which means up to 65% can be in gold, global stocks, and bonds. Many other multi-asset funds in the industry have a design where 65% is minimum Indian equities, which means only 35 can be in the other 3 asset classes. So our idea is that there are enough, there's enough money in Indian asset classes or Indian equity, and we wanted to give slightly more leeway for other asset classes. So which is why we've designed a 35-65 portfolio. Some other portfolios in the market are 65-35. They will do well in a certain environment. Ours will do well in a certain environment, but both are fulfilling the same objective of giving you diversification. So Kalpin, tell us what is so special about this fund, especially from a taxation point of view. Can you help us understand this? Sure. So Namrata, special इस फंड का पॉइंट ये है कि इस फंड में एटलीस्ट मिनिमम 30 से लेके मैक्सिमम 65% ऑफ द पोर्टफोलियो can be invested in 3 other asset classes: global equities, bonds, and gold. Number 2, when I mix this with 35% of Indian equities, the whole portfolio will have tax advantage of indexation. A country like India, where generally there is reasonable inflation,
गेटिंग एडवांटेज ऑफ इंडेक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इफ लेट्स से मान लो ये फंड ने 10% रिटर्न बनाया और इन्फ्लेशन अगर 6% है, तो इस फंड का जो कैपिटल गेन होगा, टैक्सेबल कैपिटल गेन विल बी 100 माइनस द 6 रुपीज कमिंग गोइंग अवे बिकॉज ऑफ इंडेक्सेशन. 4 rupees will get taxed at 20%, which is 0.8. So on the whole 10, 0.8 divided by 10 becomes 8%. So your effective tax rates will be much lower for the three other asset classes on which currently the effective tax rate is your marginal tax rate. Marginal. So by doing this in a single fund, one, you are reducing the marginal tax rates to indexation driven slabs. Secondly, let's say 2, 3, 4 years from now, आई वॉन्ट टू मूव आउट ऑफ वन एसेट क्लास और मुझे दूसरे एसेट क्लास में शिफ्ट करना है, मुझे अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है. हर टाइम जब आप रीबैलेंस खुद करते हो एक एसेट क्लास से दूसरे में, तब फिर से टैक्स क्रिएशन होता है और आप जो टैक्स भरते हो उसका लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग चला जाता है. बिकॉज एंड द राइट थिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इज टू कीप पोस्टपोनिंग payouts because that will allow you to compound. So hybrid funds or mixed funds like this allow rebalancing also with very high tax efficiency. Wow. And I think tax efficiency is something which most investors look for. And अगर ये fund हमें वो tax efficiency दे सकता है, then that's nice. All right. So Kalpin, आपने ना एक बहुत ही you said something which became a cult statement in the industry. You had said कि in a war against inflation you need both a sword and a shield to win. तो आप हमें ये बताइए कि from a mutual fund investor's point of view इसका क्या मतलब होता है? So basically, see, we are all we always look for heroes in life. और हमें movies भी वो अच्छी लगती है जहाँ पे the hero can bash hundreds of villains and in a war movie a king can kill an entire army with his sword and swordsmanship. तो ये movies के लिए सही होता है. लेकिन इन द रियल वर्ल्ड एज एन इन्वेस्टर हमें एक्चुअली एक ही काम करना है. हमारा जो इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य है वो ये है कि हमारे पैसे का परचेजिंग पावर टिकाए रखे हम. इन्फ्लेशन के सामने परचेजिंग पावर कम नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 5 साल 10 साल 15 साल 30 साल के बाद जब हमारी नीड्स और ज़्यादा होगी, हेल्थ केयर की नीड्स हो सकती है, घर खरीदना होगा या बच्चों के एजुकेशन की नीड्स होगी, ये जितने भी हमारे खर्चे हैं दे कीप राइजिंग एट अ मच हायर रेट than our investment portfolio in the long term. So our first enemy is inflation. Central banks are trying to fight inflation. So as consumers तो हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना चाहिए. हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमें इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न बनाना है. अब ये भी जानना ज़रूरी है कि ये पॉसिबल सिर्फ लॉन्ग टर्म में है और ये जनरली इक्विटी से होता है. इक्विटी इज़ वन ऑफ द नोन एसेट क्लासेस जो लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन को बीट करता है. तो चलो ये एस्टैब्लिश हो गया कि इन्फ्लेशन को बीट करना है तो पैसा इक्विटी में लगा दो. नाउ प्रॉब्लम ये होता है कि इक्विटी इन्फ्लेशन को तो बीट करता है एंड हेंस आई कॉल इट द स्वॉर्ड व्हिच कैन किल इन्फ्लेशन. बट इक्विटी में फ्लक्चुएशन भी बहुत आता है और ये फ्लक्चुएशन हमें मार देता है. सो फॉर मोस्ट इन्वेस्टर्स, इनफैक्ट 99% इन्वेस्टर्स हमें फ्लक्चुएशन अच्छे नहीं लगते. हमें इच्छा होती है स्ट्रेट लाइन रिटर्न की, बट वो रियल वर्ल्ड में स्ट्रेट लाइन रिटर्न कभी नहीं मिलता है. इन द रियल वर्ल्ड मार्केट्स फ्लक्चुएट इज अ यूनिवर्सल पावर लॉ ऑफ इन्वेस्टिंग. तो फ्लक्चुएशन से अगर हमें बचना है तो उसके लिए सिर्फ स्वॉर्ड नहीं चाहिए, उसके लिए हमें शील्ड चाहिए और वो शील्ड होता है गोल्ड का और बॉन्ड्स का. तो जब आप आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में गोल्ड और बॉन्ड्स को जोड़ देते हो तो पोर्टफोलियो का फ्लक्चुएशन कम हो जाता है. तो इसके लिए मैं इसे शील्ड बोलता हूँ. एंड इफ आई वर टू रिलेट दिस टू वॉर, नाउ द ब्रेवेस्ट ऑफ वॉरियर्स, अ वॉरियर विद द बेस्ट ऑफ स्किल्स, अगर वो वॉर में एंटर करता है, मान लो वो हर पूरी आर्मी को वन मैन शो बन के हरा सकता है, लेकिन अगर उसके पास तो वो 2 स्वॉर्ड लेके तो नहीं जाएगा वॉर में. वो एक स्वॉर्ड के साथ एक शील्ड क्यों रखता है? बिकॉज साथ में व्हाइल ही इज किलिंग हिज एनिमीज ही आल्सो हैज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप बाजार में उतरते हो इन्वेस्टिंग की गेम में, आपको ऐसे फेज भी आएंगे, ऐसे माहौल भी आएंगे जब आपको शील्ड की जरूरत होगी. जब मार्केट बीच में 1-1 साल 2-2 साल के लिए या तो नीचे गिरेगा या रिटर्न नहीं देगा, अगर तब आपके हाथ में शील्ड नहीं होगा, तब आप शील्ड ढूंढने जाओगे तो सामने वाला एनिमी आके आपको मार देगा, बिकॉज वो स्वॉर्ड लेके खड़ा है. सो दैट इज व्हाई आई ट्राई टू रिलेट दिस दैट लॉन्ग टर्म विक्ट्री विल कम फ्रॉम इक्विटी. शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को अगर एलिमिनेट करना है, दैट विल कम फ्रॉम अ कंजर्वेटिव एसेट क्लास. और इसका साइड इफेक्ट ये है कि जब आप शील्ड खरीदते हो तो वो शील्ड खरीदने के लिए कुछ पैसा भरना पड़ता है. दैट इज द मार्जिनली लोअर रिटर्न देन व्हाट इक्विटी विल गिव यू. बट जो इक्विटी का पेपर पे रिटर्न हमको दिखता है ना कि 10 साल में 20 साल में 15% रिटर्न बन गया, 16% रिटर्न बन गया,
वो किसी को मिलता नहीं है, बिकॉज कोई उतने लंबे समय तक डटा नहीं रहता है। हर आदमी 3-3, 4-4 साल में पैसा निकाल देता है। जब उसको मंदी आ गई तो निकाल दिया, किसी ने बहुत प्रॉफिट बना लिया तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गया, बट देन अगेन नॉट एबल टू री एंटर अगेन। सो इन द रियल वर्ल्ड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स आर ओनली ऑन फैक्ट शीट्स। अगर आपको आपके अकाउंट स्टेटमेंट में इनको कन्वर्ट करना है तो पोर्टफोलियो में सही एसेट एलोकेशन का होना बहुत जरूरी है। Kalpin, I think we've had a lot of conversation around adding gold, adding bonds, maybe global equities to our portfolio to diversify our risk. And I think as an investor, हमारा objective तो ये रहता है कि मैं अपने returns को maximize कर लूँ, risk को minimize कर लूँ, which is fair. And I think one category in mutual funds is a passive funds, which I think, to a large extent also gives some form of comfort to the investor. Passive funds ने काफी they've picked up steam. Of course, risk कम होता है, कम expense ratio होता है, and it protects us. It at least gives me less worry over the years, क्योंकि active funds के comparison में मैं believe करती हूँ कि इसमें risk कम होता है as an investor. काफी जो mutual fund houses हैं आजकल, they're launching index funds, passive funds, जिसमें index funds of course hold a big name. तो आपके ओपिनियन में जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो कितने रेलेवेंट होते हैं फॉर अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर या फिर इवन फॉर अ सीजन्ड इन्वेस्टर फॉर दैट मैटर? और मेरे पोर्टफोलियो में कितना मिक्स होना चाहिए बिटवीन अ पैसिव एंड एन एक्टिव फंड? ओके, सो फर्स्ट लेट्स गो टू कॉन्सेप्ट। पैसिव फंड हो, उसका पैसिव होता है या तो ETF या इंडेक्स, बोथ आर पैसिव। अल्टीमेटली दे आर ऑल बाइंग इक्विटीज। तो आप पैसिव इंडेक्स फंड के जरिए इन्वेस्ट कीजिए तो 50 इक्विटी स्टॉक्स आएंगे। आप मेरे एक्टिव फंड के जरिए इन्वेस्ट कीजिए, उसमें भी या तो 30 स्टॉक्स होंगे या 60 स्टॉक्स होंगे, बट दे आर स्टिल स्टॉक्स। सो बोथ आर एज रिस्की। An active fund and passive fund both have equal risk. So be very clear in your mind. जब कोविड का करेक्शन हुआ था तो निफ्टी अगर 38% से गिरा था तो निफ्टी इंडेक्स फंड जो है हमारा या किसी और का, वो 38.5% से गिरा। 38 प्लस दैट 0.5 विच इज द एक्सपेंस। अगर 2018-19 में नहीं, 2008 में तो स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड्स थे नहीं, अभी कुछ स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड्स आ गए हैं। अगर स्मॉल कैप का इंडेक्स, निफ्टी का जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, ये 67% से गिरा था, इनफैक्ट 71% से गिरा था, तो इंडेक्स फंड भी 71% से गिरेगा। तो ये बिल्कुल सेफ, ज्यादा सेफ या कम सेफ नहीं है, ये एग्जैक्टली इक्विटी का रिस्क आपको देता है। इसमें खाली फंड मैनेजर का जो प्रेजेंस के वजह से डिविएशन हो सकता है। आज अगर आपने इंडेक्स में 50 स्टॉक है और हमारे एक्टिव फंड में हम 50 के बजाय 30 स्टॉक खरीदते हैं, तो अगर वो बाकी के 20 स्टॉक ने अगर रिटर्न दे दिया तो मेरे एक्टिव फंड का रिटर्न कम होगा। लेकिन अगर मेरे 30 स्टॉक ने ज्यादा रिटर्न दे दिया तो आपके इंडेक्स फंड का रिटर्न कम होगा। तो ये पहले से डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। ये देखा गया है दुनिया भर में कि एक्टिव फंड्स हैव हाई कॉस्ट एंड ह्यूमन इंटरवेंशन ज्यादा होता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म में बहुत कम फंड मैनेजर्स है जो इंडेक्स को बीट कर पाते हैं। So the advantage of a passive fund is only if you believe that most fund managers, including people like us, will not add value to your returns. Globally, 70-80% fund managers are not able to beat benchmarks. So one is assuming कि इंडिया में भी वही ट्रेंड शायद पॉसिबली आएगा। अब हमारा ये मानना है कि see, we are a shop. We will have active products also. We will have passive funds also. So why many people are launching it? Because there is demand, and our objective is also to fulfill that demand. But आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है। And by the way, जब एक साल पहले बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आना शुरू हो गए, पैनल डिस्कशन होना शुरू हो गए, एक्टिव वर्सेस पैसिव, डेथ ऑफ अल्फा, एक्चुअली उसके ऑलमोस्ट 9 महीने में ऑलमोस्ट हाईएस्ट अल्फा हैज कम इन द लास्ट 9 months इन द लास्ट 5 year हिस्ट्री। तो ये सब साइकिल्स होती है। तो जब आपको लगेगा ना कि अभी तो एक्टिव फंड में कुछ होने वाला नहीं है, पैसिव में जाना चाहिए, मोस्ट लाइकली मार्केट विल डिसअपॉइंट यू एंड एक्टिव फंड्स विल मेक मनी। 3-4 साल एक्टिव विल गिव यू हायर रिटर्न्स देन बेंचमार्क, व्हिच मींस इफ निफ्टी हैज डन 10%, एक्टिव फंड विल डू 10.5 और 11 और 11.5। देन you'll change your belief system. You'll say नहीं एक्टिव में तो पैसा बनता है थोड़ा एक्स्ट्रा, let's go to active. Again that cycle of passive will come. So these mean reversions will keep on happening. There is very less chance to preempt them. So the solution is that you have combination of both. और आपके पास वो स्किल सेट होनी चाहिए, वो क्षमता होनी चाहिए टू चूज द राइट फंड मैनेजर एंड द राइट फंड हाउस एंड द राइट स्कीम। नाउ यहाँ पे तकलीफ क्या है ना कि मोस्ट सिलेक्शन पैरामीटर्स आर ऑल बैकवर्ड लुकिंग, दे आर ऑल बेसिस द पास्ट रिटर्न्स, और फ्यूचर रिटर्न्स का पास्ट रिटर्न्स के साथ ऑपोजिट कोरिलेशन है।
जहाँ पे पास रिटर्न ज्यादा होता है उसका फ्यूचर रिटर्न मोस्टली कम होता है एंड वाइस वर्सा। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट, और ये कॉम्प्लेक्सिटी से अगर आपको बचना है, ये मगजमारी नहीं करना है कि मैं कौन से फंड हाउस का कौन सा स्कीम चूज करूँ। वैसे ही 50 फंड हाउस है, उसके अंदर हर फंड हाउस के पास 20 स्कीम्स है, तो 1000 स्कीम में से मैं कैसे चूज करूँ? सो दैट यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट हैसल, यू स्टार्ट बाय सेइंग चलो लेट मी स्टार्ट विद एन इंडेक्स फंड। सो इंडेक्स फंड इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ये मार्केट को मीट करता है, जो भी मार्केट रिटर्न होगा आपको वो देगा। ये कभी भी मार्केट को पॉजिटिवली बीट नहीं करेगा या नेगेटिवली बीट नहीं कर पाएगा। सो आपको अगर मार्केट से ज्यादा रिटर्न खरीदना है चाहिए, तो वो इंडेक्स फंड से नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एक्टिव फंड में आना पड़ेगा, और आपको चूज करना पड़ेगा कि जेन्युइनली एक्टिव फंड मैनेजर कौन है और सही तरह से जो अपना फंड मैनेज कर सकता है। सो so we recently did a campaign few months back जहां हमने बोला था कि till you know when we look at what are consumers searching the most for on Google, they are searching for best performing mutual fund. Now that is the worst way of investing. The quest for best performing mutual fund is the worst way of being an investor. Let all investors get this with clarity. I assure you that you will end up owning a portfolio of the worst performing funds if you select based on past best performing funds. This is time tested world over. Now, if you cannot find that formula, how to do that, how to mix and match your portfolio with the styles of right fund managers, start with an index fund. And that is why our campaign was called Till You Find the Best Performing Fund, Just Index. So now, the last part of your question, how much in your portfolio should be a combination of passive or active, is purely a function of your belief system and your ability to identify an active fund manager. So if you believe that मेरे पास time नहीं है, I don't have the bandwidth to identify a good active fund manager, then let everything be in passive. It's okay. वॉरेन बफेट ने तो बोला है कि 99% इन्वेस्टर्स विल बी बेटर ऑफ अगर वो पैसिव मैनेज करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडिया इज ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ सॉलिड फंड मैनेजर्स हु आर हार्ड वर्किंग, हु आर इंटेलिजेंट, और जो कोशिश करेंगे कि हम बेंचमार्क को बीट कर सके। So मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में फॉर एग्जांपल आई हैव अराउंड 10 to 15% इन पैसिव फंड्स एंड द रेस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इज इन एक्टिव। Okay, that was a nice way of explaining passive funds, and I'm completely with you. I never spoke from my perspective, but generally belief system यही रहता है कि It passive is, system yeah, थोड़ा absolutely. कम risky होता है, and I'm completely with you in terms of that they're not exactly less risky, मतलब risk है क्योंकि obviously आप eventually equities में ही invest कर रहे बिल्कुल हो। बिल्कुल। Yeah. So, Kalpin, you were talking about the counter cycle theme, right? And you were talking about the counter cyclical investing approach. आपने थोड़ा touch up किया था उसके ऊपर. Can you just help us understand this a little bit more in detail? और ये भी बताइए कि ये जो approach होती है, ये कितनी ज़्यादा risky होती है, say compared to a flexi cap fund? No, so when you choose a flexi cap fund, no, mostly it solves for everything. Flexi cap fund में आपको अलग अलग मार्केट कैप से अच्छी कंपनीज मिलती है। फ्लेक्सी कैप फंड आपको फंड मैनेजर कुछ पोर्टफोलियो काउंटर सिक्लिकल भी होगा उसमें, कुछ पोर्टफोलियो प्रो सिक्लिकल भी होगा, कंसिस्टेंट सेक्युलर बिजनेसेस भी होगा, तो उसमें आपके हर तरह के स्टाइल्स आ जाते हैं। और इसीलिए हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप शुड बी अ डोमिनेंट पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, एवरीथिंग एल्स कैन बी अ फ्लेवर. So that's my first point, that flexi cap investing is the best way of investing. It captures everything, growth style, value style, quality style, mix of all, सब कुछ उसमें आ जाएगा. Counter cyclical is a bit complex. I don't think it's easy for me to explain in such a less period of time, but it basically says that go where crowds are not there, go into empty spaces. So जैसे एक साल पहले हेल्थ केयर सेक्टर जो है वो अंडर ओन था, बिकॉज उसके पिछले 4-5 साल का रिटर्न लो था या उनका बिजनेस साइकिल वीक था, तो देयर प्रॉफिट्स वर नॉट राइजिंग वेरी फास्ट एंड इवन द स्टॉक प्राइजेस वर नॉट राइजिंग एज फास्ट एज अदर सेक्टर्स. So if you say that okay now the sector is bottoming out और अगले 2-3 साल में यहाँ से this sector will do better than something else, but because उसका पुराना रिटर्न खराब है, बहुत कम लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं, we'll start investing there. So that's counter cyclical investing because it is out of favor, it is out of cycle. 9 months back, 1 year back, auto stocks were also in a way out of flavor. पिछले 3-4 साल से उनका रिटर्न कहीं नहीं गया था. एक साल पहले इन्वेस्टिंग इन 1 या 1.5 साल पहले इन्वेस्टिंग इन नैस्डैक और दीज ग्लोबल फैंग स्टॉक्स वॉज प्रो सिक्लिकल, कि जिसने भर भर के पिछले 2-3 साल में रिटर्न दिया है, हम उसमें और पैसा लगा रहे हैं. या इंडिया में जो टेक्नोलॉजी फंड्स थे या टेक के इंडेक्स फंड्स थे,
उनका एक एक साल का रिटर्न 100-150% था, और उसमें जब आप और पैसा लगाते हो तो वो होता है प्रो साइक्लिकल इन्वेस्टिंग। नाउ ऐसा नहीं है कि प्रो साइक्लिकल इन्वेस्टिंग डजंट वर्क, इट वर्क्स फॉर सम टाइम, बट जनरली इन द लॉन्ग टर्म देखा गया है कि काउंटर सिक्लिकल वे ऑफ इन्वेस्टिंग वर्क्स बेटर बिकॉज इट इज कॉमन सेंस। आप पैसा ज्यादा कहाँ बनाओगे जहाँ पे कंपटीशन कम है। सो इन दो सेगमेंट्स वेयर लॉट ऑफ मनी इज ऑलरेडी गॉन, उन स्टॉक्स के भाव बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं। अगर आपने भी जाके लेट खरीदा उसको, आपका फ्यूचर रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है, यू विल नॉट मेक मोर मनी। So that is what counter-cyclical investing is about. So it's a style of investing. It's a way of life for many fund managers. They start their, day when they come to office, or when they say, okay, let me look at the whole opportunity set. And in the whole opportunity set, which set is in red? जिसका 1, 2, 3 साल का रिटर्न नहीं आया है, और ये कंपनीज अच्छी है, ये प्रोमोटर्स अच्छे हैं, बिजनेसेस अच्छे हैं, लेकिन उनका इंडस्ट्री एक खराब दौर से गुजर रहा है, और उसमें अगर मुझे अच्छी कंपनी मिलती है तो लेट मी बिल्ड अ पोर्टफोलियो। सो इट्स नॉट इजी बिकॉज काउंटर सिक्लिकल वे ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल्सो मीन्स गोइंग अगेंस्ट योर brain, because we get scared when we see negative returns. And counter cyclical में क्या होता है, मैंने वो I'll give you an example. जैसे पिछले 2 साल में lot of banking stocks have run up a lot. HDFC Bank stock has been constant. It is flat. It's not risen because multiple reasons. They were going through their merger. There were question marks on their incremental ROEs. There are issues about their, technology, convenience, and so on and so forth. But the business is solid. 15% से profit grow कर रहा है on such a large scale. तो आज अगर कोई बोले कि मेरे पास 2 बैंक का चॉइस है, एक बैंक जो 1 साल में 100% ऊपर गया है, और ये दूसरा बैंक जो 3 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट 0 है, where would you want to invest? Most people will want to invest in the 100% guy, which is pro-cyclical. But investing here is counter-cyclical. So in a way, it's contrarian investing blended with good quality companies that becomes counter-cyclical investing. Okay. Last example, जैसे 2 साल पहले China was the darling of the market because growth rate था, stocks were rising. That's pro-cyclical. Today, no one wants to invest in China, but investing in China perhaps could be counter-cyclical. वंडरफुल। ओके, सो आप अपने इन्वेस्टिंग में या इक्विटी फंड्स में क्या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ फंड्स डू यू थिंक an investor could start his journey with? So if I'm just going to start my investments in equity funds, what do you think I should start with? And tell us a little bit about your investing strategy. So when I joined DSP, in a way I was starting from scratch because I have this belief कि मैं जो भी कंपनी में काम करूँगा मैं उसी फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करूँगा, बिकॉज मैं अगर मेरे इन्वेस्टर्स को बता रहा हूँ कि आप मेरे DSP के फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और मेरा पैसा और कहीं है, इट्स नॉट फेयर. सो इन अ वे so my first investment when I started in DSP was DSP FlexiCap Fund. And by the way, its last 1 year return was very poor that time. But I don't care because I'm not investing for the past. मैं आगे के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे पता है कि अगर पास्ट खराब है तो फ्यूचर बेहतर होगा. तो मेरा पहला इन्वेस्टमेंट FlexiCap था. तो आज अगर कोई भी मुझे पूछता है मुझे DSP में शुरू करना है, I will say start with FlexiCap as your first choice. My second largest investment in DSP is DSP Value Fund. बिकॉज ओवर टाइम मैंने रियलाइज किया कि मुझे ग्लोबल एक्सपोजर भी चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में और टैक्स एफिशिएंट फॉर्मेट में चाहिए. तो वैल्यू फंड में 30% ग्लोबल स्टॉक्स में जाता है. ग्लोबल स्टॉक्स, ग्लोबल फंड, जिसमें जैसे बर्कशायर हाथवे है, सम ऑफ दीज टाइप ऑफ ग्लोबल मैनेजर्स आर अ पार्ट ऑफ दिस पोर्टफोलियो. सो वाया वैल्यू फंड आई कुड एक्सपांड माई नेटवर्क. सो वैल्यू फंड का 70% गोज टू इंडियन कंपनीज, 30% goes to global funds and global companies. So that was my second exposure. Like I said, today a lot of my incremental money, because markets have run up, before I choose between FlexiCap or value, I will go to multi-cap, multi-asset, not because हम नया product launch कर रहे हैं, but I do want to increase some exposure of bonds and gold in my portfolio. So multi-cap, multi-asset allocation. But that aside, if you want to operate like me, that is the third bucket I would say. लॉन्ग टर्म में अच्छा जो वेल्थ क्रिएशन होता है वो काफ़ी टाइम छोटी कंपनियों से होता है. ये हम हमेशा बोलते हैं कि स्मॉल कैप्स में वेल्थ क्रिएशन होता है, लेकिन इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट सही होना बहुत ज़रूरी है. पिछले 20 साल में स्मॉल कैप्स में जो वेल्थ क्रिएशन हुआ है वो इसलिए हुआ है बिकॉज these good small cap companies have become very large, they've become more profitable, but their starting P ratios were 10 times. 10 के P पे ये सब अवेलेबल थे. आज की तारीख में ये सब 25 और 30 के P मल्टीपल पे है. सो यहाँ से वेल्थ क्रिएशन अगर स्मॉल कैप में करना है तो आपको एक मंदी के साइकिल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो फिलहाल नहीं है. तो इसलिए स्मॉल कैप में अगर आज किसी को पैसा लगाना है तो इट शुड बी SIP. सो माय अप्रोच वुड बी दैट स्टार्ट विथ बेसिक ब्लॉक्स, डोंट डू esoteric things.
So multi-asset allocation will do asset allocation for you. FlexiCap will give you exposure across market caps. Value and multi-asset will also give you global exposure in a way. And long-term wealth creation, instead of punting money in small cap stocks directly, come through disciplined small cap funds. जहाँ पे हमारा मैंडेट होता है कि जो 1000 माइक्रो कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज है, उसमें से हम नैरो करके सिर्फ 60 कंपनी में पैसा लगाते हैं. इट मीन्स 940 कंपनीज आर नॉट वर्दी ऑफ इन्वेस्टिंग. सो एलिमिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उसमें वो थोड़ा महंगा हो गया, इसलिए वहां अगर करना है आपको इन्वेस्ट तो SIP के थ्रू कीजिए. Yeah. Kalpin, we've spoken so much about SIP, and I think we all understand कि SIP is a good way of investing. And I think SIP के बारे में बहुत लोग जानते हैं. That's a good entry strategy. लेकिन जहाँ investors miss out कर जाते हैं is the exit strategy, right? मुझे Yes. ये समझ में नहीं आता है कि मैं redeem कैसे करूँ. तो मुझे इन्वेस्ट करना है, मैं SIP के थ्रू कर देती हूँ. वन टाइम करना है तो मैं STP कर देती हूँ to make use of this. But then अगर मुझे exit करना है, then what would be the right exit strategy for me? Can Okay. you help investors understand? ओके, सो हर स्ट्रेटजी का एक रीजन होना चाहिए, एग्जिट का भी रीजन होना चाहिए. ऐसी इन्वेस्टर, जब आप अगर आपने अपने आप को आप इन्वेस्टर बोलते हो, तो बीइंग इन्वेस्टेड इज द डिफॉल्ट स्ट्रेटजी. एंट्री एंड एग्जिट आर जस्ट 5% ऑफ द होल जर्नी. 95% ऑफ टाइम्स यू हैव टू बी इन्वेस्टेड. सो फॉर एग्जिट यू नीड टू हैव अ रीजन. मुझे 2 साल पहले घर खरीदना था, और मेरे पास चॉइस था कि मैं अपने फंड्स को रिडीम करके घर खरीद लूँ, या मैं लोन लेके घर खरीद लूँ और फंड्स को ऐसे ही रखूँ एंड लेट द फंड्स कंटिन्यू इट्स कंपाउंडिंग. नाउ बीइंग अगेन अ कंजर्वेटिव इन्वेस्टर, एंड माय थीसिस वाज कि स्टॉक्स में ये, दिस वाज जस्ट आफ्टर कोविड, मार्केट्स हैड गॉन अप बाय 100%. सो माय व्यू वाज कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके आई विल बाय अ हाउस, आई डोंट वांट टू टेक अ लोन. सो माय एग्जिट स्ट्रेटजी वाज गवर्न्ड बाय माय नीड टू बाय अ हाउस एंड द फैक्ट दैट दैट कैटेगरी हैड गिवन वेरी हाई रिटर्न्स. सो आई डिडंट वांट टू बी ग्रीडी कि ऑलरेडी बहुत अच्छा रिटर्न बन गया है, लेट मी नॉट वेट फॉर द लास्ट 5-10% ऑफ रिटर्न, लेट मी टेक सम प्रॉफिट्स आउट. So my advice on exit strategy is that it should fulfill one of your objectives of needing money, and you should exit from what is doing very well. If the long term return of equity as an asset class should be around 12%, and if your portfolio is generating 25% return, because suddenly that asset class is in a bubble zone, take profits out. Now technically, how do we judge that? We look at valuations in a range. Normally at a market extremes, जब निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23-24 टाइम्स के ऊपर होता है, आई वुड से दैट इफ यू नीड मनी देन एग्जिट फ्रॉम इक्विटी, बट इफ यू डोंट नीड मनी देन इट्स ओके. 2008 जब मार्केट का बबल था, जब निफ्टी का पी 25 टाइम पे था, उसके बाद 50% का करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर मार्केट रिवाइव हुआ, फिर ऊपर गया, फिर 30% का कोविड में करेक्शन हुआ, फिर से ऊपर आया. So even if an investor had invested on the worst day in January 2008, he has still made 9.5% return from Nifty and between 10 to 13% return from actively managed funds over a 15-year period. So if he did not time the market, he still earned meaningful returns. So जरूरत है पैसे की तो उसी दिन एग्जिट कर लीजिए, और जिस दिन एग्जिट करना है तो जो बहुत इरेशनली जिसने ज्यादा रिटर्न दे दिया उससे एग्जिट कीजिए. नॉर्मली लोग उल्टा करते हैं, जिसका रिटर्न बहुत ज्यादा है लोग उसमें ज्यादा पैसा लगाते हैं, और जिसका रिटर्न कम है उससे निकल जाता है. तो एग्जिट शुड बी काउंटर सिक्लिकल. लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में से 2 फंड्स हैं, जिसने एक में मुझे मान लो 7-8% या 9% रिटर्न है, और एक फंड में मुझे 12-13% है, देन व्हिच वन शुड आई? So again, Namrata, see, first of all, whether are they comparable? Because if one fund style is value style and one fund style is growth style, and let's say there is a long phase where value style has underperformed. Let's assume both are same. Let's assume both styles are. So first of all, बहुत मुश्किल होता है तय करना, but let's assume if both are same. If both are same, most likely the returns will not be different. To be honest, if both are same, returns will be more or less the same. तो इतना बड़ा गैप नहीं आएगा. Could be different, timelines कम हो सकती हैं, वो तो अलग बात है ना. तो फिर तो अगर टाइमलाइन अलग है तो एक का 9% और दूसरे का 12% कंपेरेबल ही नहीं है, बिकॉज आपके टाइमलाइंस अलग थे. So again, what I would say is that my preference generally, I will exit from what has made more money is how I would do it. If you're doing it in a mutual fund, if you're doing it in a stock, many times there is this loss aversion कि एक stock खराब stock है, वो नीचे जाते जा रहा है, and we average more and more of that. So in stocks you should not apply this philosophy, but in mutual funds, because it's a combination of stocks. See, my answer is not perfect science. My answer is not perfect because I am answering on very incomplete information.
You are saying that I am in a train and this train is, there is a Borivali station aa gaya hai. Should I exit or not exit? It is incomplete information for me to give you a complete answer. Fair enough. Okay, so now Kalpin, help us understand one more thing. आप 25 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं almost is what you were telling Yeah. us. So have you made any mistakes in your investing journey, and tell us how we can learn from those Sure. mistakes. So I think my biggest investment mistake is what we all make. So I am a common man. So मेरी mistakes ऐसी कोई अलग नहीं है versus let's say what you may make or most investors will make. The biggest mistake I've made in the past is always looking at the past, which is investing in the past heroes, investing in what has done very well recently. So without understanding that are these past returns sustainable? Are they very high because already that cycle has played out, already that category has become a bubble? So just to give an example, 98 when I started my career, 99 2000 mein tech stocks went up very sharply. Sure. And I ended up investing a lot in tech funds. They went down 80% after that, and they came back to par after 8 years. Yeah. So that was a great mistake, but I ensured that I learned from it. So 2020 में जब टेक स्टॉक की रैली हुई थी, I did not buy any single tech stock. In fact, हमने एक ग्लोबल टेक फंड लॉन्च किया जिसका नाम था ग्लोबल इनोवेशन फंड. वी लॉन्च ओनली व्हेन these stocks started coming down, and the only mode of investment we recommended was SIP. So basically, the biggest mistake I have made is chasing past returns. Number one. Number two, in old days, when I used to do a lot of stock investing, 2008 के बाद I have not bought a single stock. I have become only a mutual fund loyalist. But उसके पहले 98 से 2008 में I used to invest in stocks also. और अगेन स्टॉक्स खरीदने का फॉर्मूला जो था वो किसी फ्रेंड को पूछ लिया क्या लेना चाहिए, या बाजू वाले ने बोल दिया कि मैंने XYZ शिपयार्ड खरीदा है, वो लिया तब से 20% ऊपर है तो मैंने जाके ले लिया, बिना जाने कि ये कंपनी क्या करती है, इस कंपनी का प्रोमोटर क्या करता है, इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट है या नहीं है, इसका वैल्यूएशन क्या है. Without any such understanding, I would just buy because someone else has told me, or in the last 1 month, 3 months, 6 months, that stock has been rising, and headlines में न्यूज़पेपर्स में इस स्टॉक के बारे में या 5 ऐसे स्टॉक के बारे में बातें होती है. So investing without doing homework, in a way, I will club this under that bucket of this is irresponsible investing. This is blind investing. इसको speculation बोलते हैं. और speculation के भी अच्छे formulas होते हैं. तो ये कुछ समझे बिना, कुछ जाने बिना, I have invested money and I have lost not 10% or 20% or 50%. I have lost 99.9%. So I still have the certificates of these shares, which are there. But these companies don't trade. They had no business model. They were either run by bad promoters. Their accounting was not clean. तो उस जमाने में टूल्स अवेलेबल शायद इतने नहीं थे समझने या सीखने के लिए. आज वो टूल्स अवेलेबल है. लेकिन मेरा सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग ये है कि पैसा कमाने में 12 महीने लगते हैं. हर दिन 360 दिन हम जब ऑफिस में आके काम करते हैं, बीच के छुट्टी के 30 दिन निकाल दो, 330 दिन लगते हैं पैसा कमाने में. और उसको जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हम 2 मिनट भी नहीं सोचते कि क्या मेरा इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो सही है या नहीं है. So investing on envy is a wrong way of investing, and my whole approach was investing for greed, for past returns, for fast returns. Past and fast is the biggest enemy of durable future returns. All right, understood. So Kalpin, just a last question for you. Any book recommendations for our investors? Yeah, so I think one book which has helped me give more light to the mistakes I was making as an investor, and hence helping me in better thinking frameworks is The Art of Thinking Clearly by Rolf Dobelli. So that is a very good book that has helped me in my decision making for investing or for most things. Like a very simple thing, it says that आपको अगर कोई भी investing का decision लेना है आज, पहले तो don't take too many decisions. So there is a concept called activity illusion or activity bias. More activity is the enemy of returns. So it says that minimize your activity, and to minimize that activity you need a hack. So उसने एक practical hack लिखा है. He says that जब भी आपको नया पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करना है, आप पहले 4 लाइन लिख लीजिए कि क्या लॉजिक है, why are you choosing this fund, and and that just that act, or you want to redeem money, write down those 4 lines. Why do you want to redeem from this fund? That act of writing will make you think a lot more. And that act of writing also, out of laziness, many times you will not write.
and hence you will not create that activity. So you will not interrupt compounding. So that is the beauty about a lot of practical hacks that this book has. It again talks of not chasing past returns. It says that recency bias nahi hona chahiye. Don't extrapolate the past bad times or the past good times. So I think it's a very powerful book, very simply explained, very interesting examples. So this one book is very valuable, and I think that's good to start with. Sure. Thank you so much for your time, Kalpen. I know we've taken quite a lot of your time, but I think your answers were truly very valuable. I'm sure हमारे viewers को आप के answers से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. So thank you for your time, and we hope to see you again soon. Thank you so much. Thanks for partnership with DSP, and we appreciate Grow, constantly inviting us to talk to your investors. So wish you all the best. Thank you so much. See you. Bye. Wow, what a wonderful conversation with Mr. Kalpen. I'm sure आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा, and I'm sure you guys are waiting for the next one. तो जल्दी से जो भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो मैं आपके लिए समराइज कर देती हूँ. तो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया कि इंडिया का जो कंज्यूमर सेगमेंट है वो काफी बढ़ रहा है. इट्स एक्सपेक्टेड टू बी द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट बाय 2027. इस ग्रोथ की वजह से जो है कौन से सेक्टर्स को ज्यादा बेनिफिट होगा. तो मिस्टर कल्पेन सेज कि जैसे जैसे परचेजिंग पावर बढ़ती है वैसे वैसे लोग ऑफ कोर्स ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन ज्यादा पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं. एंड कम टू लुक एट इट, सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या इंश्योरेंस हो, इससे बेनिफिट करेंगे. फिर हमने एक और चीज डिस्कस करी कि एज पर अ लेटेस्ट कैम्प्स रिपोर्ट 54% ऑफ फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स जो पिछले 5 सालों से जिन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया है, दे आर मिलेनियल्स. तो इतने सारे मिलेनियल्स म्यूचुअल फंड्स में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो मिस्टर कल्पेन सेज कि देखा जाए तो आजकल एक तो बहुत सारी एडवाइस अवेलेबल है फ्रॉम एक्सपर्ट्स फॉर पीपल टू इन्वेस्ट मनी, एंड एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी की वजह से इन्वेस्टमेंट्स काफी फास्ट हो गई हैं, स्पीडी हो गई हैं. ऑल्सो ही सेज कि SIPs की वजह से जो है लोग अब इन्वेस्टर्स हो गए हैं फ्रॉम सेवर्स, एंड दे स्टे इन्वेस्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशन. हाउएवर मिस्टर कल्पेन ऑल्सो सेज कि काफी मिलेनियल्स इसलिए भी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी इक्विटी मार्केट्स बहुत अच्छा कर रही हैं. उनका द ट्रू टेस्ट ऑफ द रेजिलियंस विल कम जब मार्केट्स नीचे जाएंगी, एंड देन वी विल नो विल दे स्टे इन्वेस्टेड इन इक्विटी मार्केट्स. तो इसीलिए ये वाइटल है कि हम अपनी SIPs के साथ जुड़े रहें एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म. फिर हमने थोड़ा मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के बारे में बात करी, एंड मिस्टर कल्पेन सेज कि देखा जाए तो अभी स्टॉक मार्केट काफी एक्सपेंसिव है, मोर देन व्हाट इट शुड बी. तो ये जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं ये गोल्ड में और बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं अलॉन्ग विद इक्विटी, जिससे जो आपको प्रोटेक्ट करता है जब मार्केट्स क्रैश होती हैं. ऑल्सो जो गोल्ड पोर्शन होता है या जो बॉन्ड्स वाला पोर्शन होता है वो आपको इंश्योर करता है कि आप अपने इक्विटी पोर्शन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है. Then, Mr. Kalpen had said a beautiful statement that in a war against inflation, you need a sword and a shield against your enemy. And your enemy here is, of course, inflation. तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इक्विटी पोर्शन है, जो आपका इक्विटी है, दैट वर्क्स लाइक अ सोर्ड जो इन्फ्लेशन को किल करता है, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म इक्विटी आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देता है. बट आपको मार्केट वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट एक शील्ड की भी जरूरत होती है, और वो शील्ड होती है योर गोल्ड एंड द बॉन्ड सेगमेंट, जो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्ट करता है. एंड दिस इज वेयर द मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स कम इन. फिर हमने मिस्टर कल्पेन से ये पूछा कि अगर एक इन्वेस्टर को म्यूचुअल फंड से रिडीम करना है तो कब रिडीम करना चाहिए. तो मिस्टर कल्पेन सेज कि एग्जिट हमें म्यूचुअल फंड से तभी करना चाहिए जब या तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल अचीव हो रहा है या कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है. बट ही ऑल्सो सेज कि आइडियली हमें उन म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना चाहिए जो अच्छे कर रहे हैं, नॉट द वंस विच आर डूइंग बैड, क्योंकि नहीं तो फिर आप जो है लॉसेस में एग्जिट करोगे. देन ही आस्क्ड मिस्टर कल्पेन अ लिटिल बिट अबाउट इंडेक्स फंड्स कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स और सीजन इन्वेस्टर्स के लिए क्या सुटेबल माने जाते हैं. तो मिस्टर कल्पेन सेज कि फर्स्टली हमें ये समझना चाहिए कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं दे आर एज रिस्की एज एक्टिव फंड्स. द ओनली डिफरेंस इज कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनमें ह्यूमन बायस जो है वो एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि जो फंड मैनेजर होते हैं वो पैसिवली इन इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते हैं. तो ही सेज कि जो फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं वो इंडेक्स फंड्स के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे सिंपल फंड्स माने जाते हैं और ये एटलीस्ट आपको मार्केट मैचिंग रिटर्न्स तो दे ही देंगे.
For seasoned investors, however, he says कि आपके पोर्टफोलियो में कॉम्बिनेशन होना चाहिए ऑफ इंडेक्स फंड्स एंड एक्टिव फंड्स। फिर हमने मिस्टर कल्पेन से पूछा कि ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो हम अवॉइड कर सकते हैं एज इन्वेस्टर्स इन इक्विटी मार्केट्स। तो मिस्टर कल्पेन सेज कि सबसे पहले जो है हमें पास्ट परफॉर्मेंस या बहुत रीसेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे इक्विटी फंड्स को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट ब्लाइंडली इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। आपको जो अपना होमवर्क करना चाहिए बिफोर यू सिलेक्ट द राइट फंड फॉर योरसेल्फ। जो आसपास की नॉइज होती है उसको अवॉइड करना चाहिए नो कि आपके फ्रेंड्स बोल रहे हैं या फैमिली बोल रही है कि आपको इन्वेस्ट करना है, दैट इज व्हाई यू आर इन्वेस्टिंग, व्हिच इज रॉन्ग। ऑल्सो कभी भी फास्ट रिटर्न्स को चेज मत करिए। डोंट बी ग्रीडी अबाउट योर रिटर्न्स। हैव पेशेंस एंड स्टे इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म। सो दैट वाज अबाउट इट इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। आई एम श्योर आप सबको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। आई एम श्योर इट वाज वेरी इंसाइटफुल फॉर अ लॉट ऑफ यू। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद एवरीवन एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द ग्रुप म्यूचुअल फंड चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.